بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جس کا ترجمہ یوں ہے، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں سورہ الکہف کی آیت نمبر 86 پر جو شر پرستوں نے اپنی جاہلانہ سوچ کم علمی کی بنیاد پر ایک جھوٹی فضا بنا رکھی ہیں، جس کے ذریعے وہ یہ ثابت کرنے میں لگے ہیں کہ قرآن مجید میں تضاد یعنی کانٹراڈکشن اور سائنسی لحاظ سے فرقان مجید میں غلطیاں ہیں۔ اس آیت پر ویسے شر پرستوں کی جانب سے ہزاروں ویڈیوز بنائے گئے ہیں۔ ان سارے جاہلوں کے جھوٹ کا پردہ فاش کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہیں۔ برائے مہربانی اس کو آخر تک دیکھیے۔ یعنی سورہ کہف آیت نمبر 86 کے حوالے سے بات کروں گا۔ یہاں سے ہم کو معلومات ہوگا کہ اسلام کے اندر کتنی سائنس ہے۔ تو یہاں پر آتا ہے یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کے موقع پر پہنچے تو وہ آفتاب یعنی سورج ان کو ایک کالے رنگ کے پانی میں ڈوبتا ہوا دکھائی دیا۔ یعنی قرآن کے حساب سے سورج کسی کالے پانی میں ڈوبتا ہے، لیکن دوستو ہم سبھی ایک بات جانتے ہیں کہ سورج کبھی بھی نہیں ڈوبتا۔ جب ہماری ارتھ اپنے ایکسس پر گھومتی ہے تو اس کا ایک حصہ سورج کی اور ہوتا ہے اور اس کا دوسرا حصہ سورج سے دور ہوتا ہے۔ جو حصہ سورج کی اور ہوتا ہے وہاں پر دن ہوتا ہے، اور جو حصہ سورج سے دوسری سائڈ پر ہوتا ہے وہاں پر رات ہوتی ہے۔ یعنی آج کی سائنس یہ کہتی ہے، لیکن اسلام کی سائنس کہتی ہے کہ سورج کسی کالے پانی میں ڈوبتا ہے۔ ویری گڈ۔ سب سے بڑھیا ہوتا ہے کہ سورس کو چیک کر لو کیا ہے، تو چیک کر لیتے ہیں اس کو، ہے نا۔ اب یہ جو قرآن ہے اس کا آتھر ہے، دیکھو ڈاکٹر ہلالی اور ڈاکٹر خان۔ یہ دنیا کی سب سے اوتھینٹک ٹرانسلیشن مانی جاتی ہے انگلش کی، اور اس کی اوتھینٹسٹی کو اگر تم نے سمجھنا ہو نا تو جتنے لوگ حج پہ یاترا کرنے سعودی عربیہ جاتے ہیں، سعودی عربیہ کی گورنمنٹ ان کو یہ والی ٹرانسلیشن گفٹ میں دیتی ہے، اور اکارڈنگ ٹو وائکیپیڈیا دس از دا لارجسٹ سیلنگ انگلش ٹرانسلیشن۔ اب اس میں وہ والی ورڈز میں کیا لکھا وہ دیکھو ذرا۔ Until when he reached the setting place of the sun, he found it setting in a spring of black muddy or hot water. And he found near it a people. Allah said by inspiration, O Zulkarnain, either you punish them or treat them with kindness. اب اس کا میننگ ذوالقارنین نا یہاں پہ الیگزینڈر کے لیے یوز کیا ہوا نا، الیگزینڈر دا گریٹ جو وہ ایمپرر تھا۔ اس کے اکارڈنگ وہ اتنا دور چلا گیا کہ جہاں پہ سن سیٹ ہوتا ہے وہاں تک پہنچ گیا تھا۔ Until when he reached the setting place of the sun, he found it setting in a spring. He found it setting in a spring of black muddy water. اس میں تو کلیئر ہے۔ اور اگر کوئی اور ٹرانسلیشن دیکھنی ہو تو یہ عبد المجید دریا بادی اس کی ٹرانسلیشن ہے، Until when he reached the setting place of the sun. اس میں بھی وہی ہے۔ سر قرآن الیگزینڈر کے سمے کے بعد بنی، کس کے بعد؟ الیگزینڈر دی گریٹ کے بعد۔ ہاں قرآن بنی ہے 7th سینچری میں۔ اب یہ ایک اور ٹرانسلیشن ہے سید ابو المودودی۔ مودودی کیا کہتا ہے؟ Until when he reached the very limits where the sun sets.
He saw it setting in dark, turbid waters. जितनी ट्रांसलेशन देखोगे, ये है मोहम्मद पिकथॉल की ट्रांसलेशन. Till when he reached the setting place of the sun, he found it setting in a muddy spring and found a people thereover. मतलब एक तालाब में जाके डूबता है, उसके आसपास लोग भी रहते हैं. और अगर हिंदी ट्रांसलेशन देख लो, ये हमारे देश में ही छपी गया, दिल्ली में. यहाँ तक कि जब वो सूर्यास्त स्थल तक पहुंचा, जहाँ पे सूर्य डूबता है वहां तक पहुंचा, तो उसे मटमैले काले पानी के स्रोत में डूबते हुए पाया. उसने देखा कि काले रंग का मटमैला पानी था, उसमें सूरज छुप गया जाके. सर हिंदी वाले मैडम की याद आ रही. हाँ जी, सर आपकी हिंदी सर ये सन है. हाँ, उदास हो गया होगा बेचारा. क्या कह रहे हैं आदित्य? सर आपने जैसे हिंदी बोली ना, हिंदी वाली मैडम में याद आ गए टाइम के. अच्छा, इतने शुद्ध हिंदी. हाँ, तो उन्होंने लिखी शुद्ध है तो शुद्ध ही बोलेंगे. तो क्या क्या कंक्लूजन निकलता है? सारे ग्रामर्स में लिखा हुआ है. तो आइए अब देखते हैं सूरह अल कहफ की आयत नंबर 86. हत्ता इज़ा बलगा मगरिब शम्सी वजदहा तक़रबु फी ऐनिन हामियातिन. इस आयत में वजदहा ये लफ्ज़ ज़रा याद रख लीजिए. आइए इसका वो उर्दू में तर्जुमा देखते हैं. यहाँ तक कि जब सूरज के गुरूब होने की जगह पहुँचा तो उसे ऐसा पाया कि एक कीचड़ की नदी में डूब रहा है. तो मैंने आपसे कहा था कि वजदहा ये लफ्ज़ यहाँ पर पाए के निकलते हैं. पाया, ऐसा पाया कि एक कीचड़ की नदी में डूब रहा है. आइए एक और उर्दू तर्जुमा देखते हैं. यहाँ तक कि जब सूरज डूबने की जगह पहुँचा उसे एक सियाह कीचड़ के चश्मे में डूबता पाया. पाया के माने यहाँ पर अरबी में कहा जाता है वजदहा. आइए अब एक इंग्लिश में देखते हैं ट्रांसलेशन इसका, इस आयत का. Until when he reached the setting of the sun, he found it in a spring of dark mud. I think Mr. Neeraj lacks basic knowledge of English grammar. In this translation, it clearly says until. If instead of until, if there was a word while, then it would have been a objectional matter. आइए अब एक शायद इस तरह का कुछ मंज़र या मनाजिर हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने उस वक्त देखा होगा जहाँ पर सूरज काले पानी में डूब रहा है. शायद इस सूरह अल कहफ की आयत नंबर 86 को समझने के लिए बुनियादी तौर पर हमको 4 चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है. और वो 4 चीज़ें लैंग्वेज एक्सप्रेशन, लैंग्वेज प्रिसिशन, फैक्चुअल इवेंट और टेम्पररी स्टेट है. लैंग्वेज एक्सप्रेशन वो है कि लग़वी ज़बान का ज़ाहिर, उसे कहते हैं लैंग्वेज एक्सप्रेशन. मोटी ज़बान में किसी चीज़ को ज़ाहिर करना उसे कहते हैं लैंग्वेज एक्सप्रेशन. अब मिसाल के तौर पर दुनिया में एक मुल्क है, मशहूर मुल्क, जिसे हम कहते हैं जापान. जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं. आज के तरक्की याफ्ता दौर में, साइंसी दौर में, एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में हम ये जानते हैं कि सूरज ना तुलू होता है ना गुरूब होता है. बावजूद इसके जापान को हम कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन. और जापान के लैंग्वेज में से कहते हैं निपॉन, NIPPON, निपॉन और निहॉन, यानी लैंड ऑफ राइजिंग सन. इसे कहते हैं लैंग्वेज एक्सप्रेशन, जिसके तहत हम ये समझते हैं कि जापान फार ईस्ट में है, ना कि वहाँ से सूरज तुलू हो रहा है. और एक मैं मिसाल देता चलूँ, यूरोप में एक मुल्क है जिसका नाम है नॉर्वे. नॉर्वे को कहते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन, यानी साल में एक ऐसा भी दिन आता है जहाँ पर
नॉर्वे में सूरज भी दिखता है और चांद भी दिखता है, तो उसे कहते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन। अब आप मुझे ये बताइए, क्या नॉर्वे में सूरज और चांद दोनों गुरूब और तुलू होते हैं? हरगिज़ नहीं। इसे कहते हैं लैंग्वेज एक्सप्रेशन। अब दूसरा आइए, लैंग्वेज प्रिसीशन। लैंग्वेज प्रिसीशन दरअसल इस आयत में साइंटिफिक रिलेटेड ये चीज़ नहीं है। ज़ुल्क़रनैन, हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने जो मनाजिर देखा है वो बयान कर रहे हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ज़ुल्क़रनैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज एक्सप्रेशन। और एक फैक्चुअल इवेंट। अब थर्ड और फोर्थ इंटर रिलेटेड है, फैक्चुअल इवेंट और टेम्पोररी स्टेट। फैक्चुअल इवेंट, अब जो ज़ुल्क़रनैन, हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने जो देखा है कि सूरज एक मटमैले पानी में डूब रहा है, क्या वो फैक्चुअल है या नहीं, हकीकी? इसे कहते हैं फैक्चुअल या टेम्पोररी स्टेट। अब यहाँ पर इस आयत में लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वजदहा। वजदहा मतलब पाया, फाइंडिंग, फाइंड आउट। वजदहा हत्ता इज़ा बलगा मगरिब शम्सी वजदहा। वजदहा के मायने हमेशा फैक्चुअल इवेंट्स पे नहीं होता है। किसी चीज़ को पाना हकीकी तौर पर इसे नहीं कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे शहर में एक तालाब है, वो अगर सूख गया किसी साल और मैं उस शहर छोड़कर किसी और शहर चले गया, तो अगले 10 साल तक क्या मैं ये कहूँगा कि मैंने मेरे शहर के तालाब को सूखा पाया? ये फैक्चुअल इवेंट नहीं है, उस वक्त के लिए ही था, नॉट अ फैक्चुअल पॉइंट। अब फोर्थ वन है टेम्पोररी स्टेट। अब यहाँ पर इस आयत में कहा गया है कि हत्ता इज़ा बलगा मगरिब शम्स वजदहा तक़रुबु फ़ी ऐनिन हामियातिन। तक़रुबु फ़ी ऐनिन हामियातिन, ये टेम्पोररी स्टेट है, यानी कि टेम्पोररी स्टेटमेंट है। जिस तरह से मैंने तालाब का आपको जिक्र किया है, इसी तरह से ये भी एक टेम्पोररी स्टेट है। आइए और मज़ीद तफसील से ये दो पॉइंट देखते हैं, फैक्चुअल इवेंट और टेम्पोररी स्टेट। जैसा कि मैंने कहा कि वजदहा ये लफ्ज़ हमेशा हकीकी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये लफ्ज़ वजदहा हकीकी तौर पर किसी चीज़ को पा लेने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता है हमेशा के लिए, वजदहा। और इसी आयत में वजदहा तक़रुबु फ़ी ऐनिन हामियातिन, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो आयत का जो टुकड़ा है, ये टेम्पोररी स्टेट है। उन्होंने सूरज को मटमैले पानी में डूबता पाया। किसने पाया? ज़ुल्क़रनैन, हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने पाया। तो इसे कहते हैं टेम्पोररी स्टेट। और अरबी में ऐसे जुमलों को कहते हैं जुमला हाविया। जुमला हाविया को कहते हैं टेम्पोररी स्टेट। तो इस हिसाब से वजदहा हमेशा फैक्चुअल इवेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होता है हकीकी तौर पर। वजदहा तक़रुबु फ़ी ऐनिन हामियातिन, ये टेम्पोररी स्टेट है, जुमला हाविया कहते हैं इसे। अब मिसाल के तौर पर इसी सूरे की और एक आयत है, आयत नंबर 69, जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया जा रहा है। अब 69 में देखिए, ख़ाला सताजिदूनी इंशाअल्लाहु साबिरा। अब यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं ख़ाला सताजिदूनी। सताजिदूनी का मायने होता है पाना। इंशाअल्लाहु साबिरा, आप मुझे सब्र वालों में पाएंगे। अब ये हकीकी तौर पर टेम्पोररी स्टेट में क्या सही है? क्या खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को साबिर पाए? कुरान के आयतों में आगे कह रहे हैं, आगे हमें पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम से 3 सवालात करते हैं। इसके बाद खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को साबिर नहीं पाते। तो सताजिदूनी यहाँ पर भी वजदहा के मायने हैं, यहाँ पर टेम्पोररी अनफैक्चुअल है। आइए कंक्लूड करते हैं इस आयत को। हत्ता इज़ा, यहाँ तक के जब, बलगा मगरिब शम्स, सूरज डूबने की जगह पहुँचा। सूरज डूबने की जगह पहुँचने के मुराद, जिस तरह से मैंने जापान का एग्जांपल दिया है, उसी तरह से फार्श वेस्ट में पहुँचे, दूर मगरिब तक। वजदहा गैर हकीकी
چیز کو پانے کو کہتے ہیں. وجدہ تقرب فی عین حامیات، یہ جملہ حاویہ ہے، ٹیمپرری اسٹیٹ ہے، اور یہ سارا یہ جو آیت ہے حضرت ذوالقرنین کے نقطہ نظر سے ہے. اگر ایسا ہوتا تو فی حینی ہوتا، جب سورج ڈوب رہا تھا